Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. In my last video, I asked you guys about what should we do regarding, essay mentorship program and how can we connect on a greater level regarding the preparation of CSS. And I decided to make an Instagram page, and soon I'll also be making my own WhatsApp community where I'll be connected with the aspirants who are planning to appear for CSS 2026. So in the meanwhile, I had received a few questions on Instagram, and I believed they required a lot of discussion. उनमें से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने पर्सनली रिप्लाई किया था, बट देन देर वर सच कंसर्न्स विच आई थॉट नीडेड a lot of attention, and those questions were actually the concerns of many students and aspirants. So I thought one by one I should address all those questions. So the first is, please share your complete strategy regarding preparing essay, composition and political science in a video. So you cannot oversimplify the preparation of all these subjects, but if I have to explain the strategy in one line, it is that just start writing your essays. Don't wait for अ परफेक्ट टाइम कि मैं अक्टूबर में जाके एसेज लिखना स्टार्ट करूँगी या दिसंबर में जाके. जस्ट स्टार्ट राइटिंग. ऐसे इज़ समथिंग जो कि आपको कोई जितना मर्जी उसके ऊपर लेक्चर दे आपको समझ नहीं आएगी. यू विल ओनली अंडरस्टैंड व्हाट एंड हाउ टू राइट एन ऐसे व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग इट. And just start writing the essay. I mean, this is your moment. Just start writing and also get your essays evaluated. देर आर मैनी सच टॉपिक्स. जब हम ऐसे कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें उनके बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ऐसे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं. आई रिमेंबर वन सच टॉपिक वॉज रिलेटेड टू कंज्यूमरिज्म. It was a question from past paper, and when I attempted that question, when I attempted that essay, I did not know what consumerism actually is on a greater level, or how I can create a debate about it in my essay. So I took 20 to 30 minutes to research about that topic in a very general way. And then I had a very general idea of what consumerism is. After that, I read the essay's statement and I broke it down into very simple words. Now it doesn't mean कि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने या यूएन ने कंज्यूमरिज्म की एक डेफिनेशन दी है तो मैं उसी डेफिनेशन को कोट करूँ. दैट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. ओके, it's good if you give references, it's good if you mention stats, but please make sure that your essay should look like a person is presenting logical arguments. Your essay should not look or feel like a research report. You are not writing a research report. The examiner does not want to know how many stats you have memorized. The examiner doesn't want to know how many resources you know. It really doesn't matter. What really matters is from how many dimensions are you going to cover the topic. That is the most important thing about an essay. And then if we talk about composition and Pressy paper, so make sure you give 2 hours to English in your day. So basically what I used to do is that my 1 hour used to be for English essay and the other hour used to be for essay and composition. So initially how I used to take these two subjects was that I used to write, आई यूज़ टू गिव. इनिशियली तो मैं 3-3 घंटे ऐसे को देती थी. मैं हर दिन एक ऐसे लिखती थी. बिल्कुल शुरू की बात है. आई थिंक टिल सितंबर मैं यही करती थी. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सीरियसली इन अप्रैल 2024 एंड टिल सितंबर मैं हर दिन ऐसे लिखती थी. और मेरे 3-3.5 घंटे जाते थे. मुझे हर दिन लगता था शायद मैंने बहुत टाइम ज़ाया कर लिया, लेकिन ट्रस्ट मी वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. दैट इज़ द टाइम दैट एक्चुअली हेल्प मी बिल्ड माई बेस फॉर ऐसे. सो आप अगर आप हर दिन नहीं ऐसे को दे सकते, आप हफ्ते में 2 या 3 दिन ऐसे को दें जिसमें आप फुल लेंथ ऐसे लिखें. ठीक है. और उसके बाद आप अपना कुछ टाइम प्रेस या कॉम्पोजिशन के पेपर को भी दें. उसके अंदर आप उसको डिवाइड करें कि जिस दिन आप ऐसे लिख रहे हैं उस दिन आप कम स्ट्रेनस एक्टिविटी करें उस पेपर में से, विच कुड बी मे बी पंचुएशन, विच कुड बी मे बी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की रिविजन, और ईडियम्स, or translation, composition as well. So you also need to identify कि आपका प्रेस और composition के पेपर में से which is your weakest part, in what are you the weakest. आप जिस चीज़ में सबसे वीक हो उसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो. आपको पता है कि जिस चीज़ में यू हैव गुड ग्रिप, यू डू नॉट नीड टू रिपीट दैट थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. और जिस दिन आप फुल लेंथ ऐसे लिख रहे हो उस दिन आपको कोई बहुत स्ट्रेनस काम करने की ज़रूरत नहीं. उस दिन आपको प्रेसी लिखने की ज़रूरत नहीं. जिस दिन आप सिर्फ आउटलाइन लिख रहे हो उस दिन आप
प्रेसी लिख सकते हो, ठीक है. सो यू नीड टू डिवाइड योर थिंग्स लाइक दिस एंड प्लीज़ डू नॉट इग्नोर पेयर ऑफ वर्ड्स एंड idioms and the grammar portion in the paper of Pressy and composition. So what I used to do was कि मैं हर दिन 5 synonyms antonyms करती थी या 5 idioms या पेयर ऑफ वर्ड्स करती थी. इनिशियली लगता है कि 5 करेंगे या 2 करेंगे या 3 करेंगे तो ये कभी कवर नहीं होंगे, लेकिन 5 भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आप एक दिन ऐसे लिखते हो तो आपके लिए 5 idioms करना भी बहुत ज़्यादा होता है. सो आप 2 idioms कर लो, 3 idioms कर लो, 1 idiom कर लो, लेकिन जस्ट डू इट होल हार्टेडली. ऐसे का मुझे एक्सप्लेन करने थे आपको. मैंने कहा कि मैं हर दिन फुल लेंथ ऐसे लिखती थी. दैट वुड बी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर सम स्टूडेंट्स, सो आई नीड टू एक्सप्लेन इट. ऐसे जो है इनिशियली मैं हर दिन उसको लिखती थी, येस, बट दैट डिड नॉट कंटिन्यू फॉर वेरी लॉन्ग. ओके, सो मैं क्या करती थी कि हफ्ते में 3 दिन में फुल लेंथ एसेज लिखती थी. बिल्कुल इनिशियली फुल लेंथ एसेज लिखती थी, और जिन दिनों में मैं एसेज नहीं लिखती थी उन दिनों में मैं सिर्फ आउटलाइंस लिखती थी, ठीक है. आउटलाइंस और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखती थी. और अक्सर ये भी होता था कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के आउटलाइंस लिख रही होती थी जिनका मुझे नहीं मतलब पता होता था, लाइक आई हैड नो आइडिया अबाउट द टॉपिक. तो मैं बीच में ऐसा करती थी कि एक दिन मैं 20-30 मिनट्स या इवन 1-1 घंटा उस टॉपिक के बारे में पढ़ती थी कि टॉपिक है क्या, और उसके अगले दिन उसकी आउटलाइन लिखती थी या समटाइम्स फुल लेंथ ऐसे अटैम्प्ट कर लेती थी, डिपेंडिंग कि मुझे क्या लगता था कि क्या अगर इसके ऊपर फुल लेंथ ऐसे आए तो मैं लिख सकती थी कि नहीं. सो यू हैव टू असेस योर सेल्फ. आई वॉज वेरी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ कि मैं एक ऐसे को देखती थी और मुझे लगता था कि दिस इज़ समथिंग ये मैं खुद लिख सकती हूँ, लाइक इसके ऊपर मैं फुल लेंथ ऐसे लिख सकती हूँ, तो मुझे दोबारा से इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं नहीं लिखती थी. लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक था जिस तरह जेंडर से रिलेटेड कोई ऐसे आता था, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आता था कोई ऐसे, या कंज्यूमरिज्म से इस तरह से कोई, या कल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स आते थे, तो मुझे पता था ये मेरी वीकर, दिस वॉज माई वीकर साइड, लाइक आई वॉजंट वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस. तो इन पे मैं पहले रिसर्च करती थी, फिर मुझे लगता था कि आई नीड टू राइट ऑन इट, तो मैं इस पर फिर आउटलाइन लिखती थी, फिर मैं इस पर पूरा ऐसे लिखती थी. लेकिन ऐसा नहीं था कि ऐसे लिखते हुए मैं उस इंटरनेट खोल के देख रही हूँ. बस 20 से 30 मिनट्स अपने आप को दें उस टॉपिक को समझने के लिए. अगर आपको लगता है कि आज टुडे यू आर नॉट रेडी टू राइट अबाउट दैट टॉपिक, इट्स ओके, डोंट राइट अबाउट इट, बट डू योर रिसर्च अबाउट इट. एटलीस्ट लेट सम कंटेंट अबाउट ऐसे गो इन योर हेड, ताकि आपको ये लगे कि मैं कुछ तो कर रही हूँ, बिकॉज आई वुडेंट सजेस्ट एनी वन मिसिंग देयर इंग्लिश डेज. यू शुड नॉट मिस इंग्लिश ऑन एनी ऑफ योर डे, बी इट इंग्लिश प्रेसी और इंग्लिश ऐसे. किसी ना किसी तरह इंग्लिश को अपने माइंड में कंज्यूम करते रहें, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू कैन गेट गुड मार्क्स इन इट. एटलीस्ट दिस इज़ माई अप्रोच. और शुरू के मंथ्स में मैंने यही किया था. बाय द एंड माई अप्रोच वॉज वेरी डिफरेंट. बाय द एंड मैं हफ्ते में सिर्फ एक ऐसे लिखती थी और सिर्फ आउटलाइंस प्रैक्टिस करती रहती थी, और वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन. और मैं उन टाइम, और बाय दैट टाइम, बाय द एंड ऑफ माई CSS प्रेपरेशन, मेरे पास इतने ज़्यादा एसेस लिखे हुए थे कि मैं उन्हीं को रिवाइज करती रहती थी, और मैं खुद अपनी गलतियाँ निकालती थी. लाइक मुझसे अपने पुराने एसेस देखे नहीं जाते थे. आई वाज लाइक व्हाट हैव आई रिटन, आई डोंट लाइक दिस, आई कुड हैव रिटन बेटर. लाइक ऐसी एक अप्रोच हो गई थी विच आई थिंक वॉज अ गुड अप्रोच, क्योंकि यू बिकम योर ओन टीचर देन. So yeah, this is about English essay. And political science was something कि political science जो है, as I mentioned before, it was my major in my undergraduate degree. So I had the basic understanding of political science. तो मैंने political science को ज़्यादा past paper से किया था. I always tried कि मैं अपने political science के paper को different कैसे बनाऊँ. political science में मुझे learning में इतना problem नहीं हुआ. टू बी ऑनेस्ट, पोलिटिकल साइंस को मैंने एसेंशुएट किया अपनी तैयारी को बाय एडिंग रेफरेंसेस, बुक्स के रेफरेंसेस, ऑथर्स के रेफरेंसेस, फिलोसोफर्स के रेफरेंसेस, एंड ऑल्सो द रेफरेंसेस आई यूज टू बेसिकली make my answers very contemporary, and also I used to add maps and case studies, and also one of my optionals was governance and public policy. So what I used to do was that I used to mention examples from different courses, different subjects or different countries into political science, into the answers of political science, जिससे I think कि एक comparative आपका वो आंसर हो जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा उस तरह से कवर हो जाता है. और मैंने पोलिटिकल साइंस पेपर 2 का कुछ भी नहीं छोड़ा था. सो ऑल्सो पेपर 1 का आई नीड टू मैंशन वन थिंग. व्हाट वी डू इज़ कि हम देखते हैं कि कुछ मेजर फिलोसोफर्स हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो, मैकियावेली,
मेजरली हम सिर्फ इनको प्रिपेयर करके जाते हैं, और ये तुक्का लगा हुआ है कि इस साल प्लेटो आया अब एरिस्टोटल आएगा, अब प्लेटो आएगा अब एरिस्टोटल आएगा, इस साल मैकियावेली आए तो अब मोंटेस्क्यू आएगा. दिस इज़ वन थिंग बिकॉज आई नोटिस दिस विद one of my teachers telling me, and I thought that this is such an unpredictable way to prepare your exam. It could be true as well, but I don't remember कि मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि नहीं. But I would not suggest anyone doing this, because when you miss a philosopher, you are actually missing a point of view. So when you miss a point of view, आप actually अपने आंसर के अंदर एक डेप्थ को मिस कर रहे हैं, जो कि आप शायद अगर डालें तो एग्जामिनर को लगे that you are someone who knows how to जॉइन द पॉइंट्स. आपको पता है कि आपने एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, देर आर सर्टन फिलोसफर्स जो कि वेस्टर्न पोलिटिकल फिलोसफी में मैंशनड है, जिनमें फूको एक फिलोसफर है हु टॉक्स अबाउट बायोपॉलिटिक्स. अदर देन दैट वी हैव माओ जेडोंग. उसके बाद हमारे पास लेनिन भी है, एंड वी ऑल्सो हैव a few more philosophers are just Hegel. We have Hegel who talked about dialectic materialism, right? So हम इन philosophers को भूल जाते हैं, right? अब now when we talk about different issues in political science part B paper, उसके अंदर वो आपको स्टेट के बारे में पूछते हैं, उसके अंदर वो आपको इस्लामिक पर्सपेक्टिव पूछ लेते हैं, या उसके अंदर वो आपको बहुत फंडामेंटल्स ऑफ स्टेट पूछ लेते हैं ना. उसके अंदर दे डू नॉट रिक्वायर यू टू जस्ट राइट द डेफिनेशंस. They basically require you to explain all these concepts in the context of what the philosophers have said, right? So you have to try कि आप अपने political science के पेपर में उन सारे philosophers का भी जिक्र करें जो कि mainstream philosophers नहीं हैं, but they are a part of your syllabus. And same goes for the Muslim political philosophers. Like 50% of, like 90% of students are only preparing Al-Farabi, Al-Mawardi, and Ibn Khaldun. I mean, these are the only philosophers that people are mostly preparing. You have to prepare all the other philosophers as well. अगर आपको, now what I'm trying to say is, you do not need to learn all the philosophers. आपको हर फिलोसोफर की सारी चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए, लेकिन आपको एटलीस्ट बेसिक चीज़ तो पता होनी चाहिए ना. आपको एटलीस्ट एक 2 लाइन समरी पता होनी चाहिए कि अगर मुझे कहीं इसको फिट करना हो तो एटलीस्ट मैं फिलोसोफर का रेफरेंस दे के अपनी बात प्रूफ कर दूँ. You get my point? So you just need to do that. Make sure कि you just need to fix the philosophers and his idea in a way कि examiner को लगे कि this person is someone जिसने एक अनकन्वेंशनल तैयारी की है, जिसने एक ऐसी तैयारी की है जो बाकियों से हटके है. हम इसके पेपर में कार्ल मार्क्स से हटके भी कोई नाम सुन रहे हैं, हम हीगल का नाम देख रहे हैं, हम फूको का नाम देख रहे हैं, हम और भी 2-3 डिफरेंट फिलोसफर्स का नाम देख रहे हैं. सो ऐसा होना चाहिए. आई होप यू गेट माई पॉइंट, राइट? सो ये बिल्कुल 1 लाइन और 2 लाइनर आंसर्स हैं मेरे, जो कि दे डू नॉट बेसिकली जस्टिफाई कम्प्लीटली हाउ यू नीड टू प्रिपेयर, बिकॉज इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट टॉपिक्स, एंड दैट इज़ समथिंग यू अंडरस्टैंड व्हेन यू गेट अ वेरी पर्सनल मेंटोरशिप फ्रॉम समवन. इवन जब आप क्लासेस में भी पढ़ते हो किसी से, व्हेन यू गो टू अकेडमीज और अदरवाइज, तो उसमें भी बहुत एक जनरल अप्रोच होती है. सो दिस इज़ समथिंग कि जब कोई आपको 1-on-1 आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करके आपको बताए कि दिस इज़ व्हाट यू शुड वर्क ऑन एंड दिस इज़ हाउ यू शुड मूव फॉरवर्ड. So somebody texted me if I joined any academy or not. So yes, I did join an academy. In fact, I did not join only one academy as I mentioned, because I was aware of the fact कि जब आप एक ही जगह पे पढ़ते रहते हो तो there is this thing in the mentors, उनको लगता है कि ये कर सकती हैं, या इनसे हो जाएगा, या इनसे नहीं हो सकती, या शायद इनमें पोटेंशियल नहीं है, तो आपका एक इमेज बन जाता है. सो आई थिंक यू शुड हैव मल्टीपल पीपल अराउंड यू. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ अकेडमीज़ की ही बात हो रही, यू शुड ऑल्सो हैव मैनी मेंटोर्स इन द लूप जो कि आपको उस तरह से एनालाइज करें. So after that we had a few more questions. Okay, notes, links. Now I need to explain a few things. Political science की books थी मेरे पास. I will share the books with you. Probably I'll share them on my Instagram. And then criminology and gender studies. Now gender studies is something जो बहुत scattered resources थे मेरे, and by the end of my preparation I made my own notes as well. क्योंकि आपके जो notes है बहुत updated होने चाहिए. इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ. और जो क्रिमिनोलॉजी मैंने किसी बुक से प्रिपेयर नहीं किया था. आई एक्चुअली प्रिपेयर्ड क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम रिसर्च पेपर्स. आई नो दैट साउंड्स वियर्ड बिकॉज you don't know how to prepare from research papers. It gets very tough. So I've always found studying from research papers easier
देन स्टडिंग फ्रॉम द बुक्स. सो रिसर्च पेपर्स आर मोर कंटेम्प्रेरी, वो ज़्यादा अप टू डेट होते हैं. तो मैंने क्या किया था, फॉर एग्जांपल अगर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है तो मैंने गूगल पे लिखा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, और जो मुझे लगता था कि अच्छा रिसर्च पेपर है, मैं उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के पढ़ उसको उस तरह से याद करती थी, और इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है. सो आई कैन एक्सप्लेन यू टॉपिक वाइज में भी, लेकिन मेरे जो नोट्स हैं वो सारे रिसर्च पेपर्स हैं हार्ड कॉपी में, और अगर आप खुद भी सर्च करो तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली वो मेरे रिसोर्सेज थे. और सेम इज़ फॉर जेंडर स्टडीज. सो आई कैन नॉट जस्ट शेयर माई नोट्स ऐसे ही बिकॉज दे आर टू मच, बट ऑफ कोर्स इफ़ देयर इज़ अ वन ऑन वन सेशन विद स्टूडेंट्स, उसके अंदर तो मैं उनको टॉपिक वाइज क्योंकि एक्सप्लेनेशन हो रही होती है तो उसमें आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो. वन मोर थिंग विच आई वुड सजेस्ट ऑल दी एस्पायरेंट्स टू डू, हर सब्जेक्ट का करंट अफेयर होता है. ओके, बी जेंडर स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, इस्लामियात के भी करंट अफेयर्स होते हैं. सो whenever you read newspaper, you always focus newspaper on current affairs or park affairs or international relations and to some extent political science as well. हर सब्जेक्ट का एक करंट अफेयर आपके अखबार में छुपा हुआ होता है. सो मेक file for different optionals that you have, and whenever you read the newspaper, extract the matter which you think is relevant to your options. For example, criminology से related जो भी context आता था, for example कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर आता था, या हमारे प्रिजन सिस्टम से रिलेटेड कुछ आता था, या क्राइम से रिलेटेड कुछ आता था न्यूज़पेपर में, तो मैं उस जो जो भी एडिटोरियल होता था, जो भी कोई न्यूज़ होती थी, उसकी लिस्ट बना के अपने पास, उसके लाइक नोट्स बना के अपने पास रख लेती थी. ठीक है, या टेररिज्म से रिलेटेड कोई होता है, या एडिटोरियल्स होते हैं विच टॉक अबाउट रीजंस ऑफ टेररिज्म, या इस तरह की चीज़ें. सो वो मैं नोट्स बना के रखती थी. एंड सेम गोज़ विद जेंडर पे तो हर वीक बेतहाशा एडिटोरियल्स आ रहे होते हैं. एंड आपने देखा होगा कि 2022-2023 में भी जो जो ऐसे के टॉपिक्स थे जो जेंडर के स्पेक्ट्रम में थे, वो ऐसा लग रहा था कि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स की हेडिंग्स थी. सो यू नीड टू बी वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि आपको वो आपसे इस तरह से सवाल पूछ लेते हैं जो कि बहुत कंटेम्प्रेरी स्पेक्ट्रम में होते हैं. जेंडर में डिजिटाइजेशन और जेंडर गैप एक बहुत बड़ा इशू है. उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको अगर आप फॉलो करो तो वो मॉडर्न ट्रेंड है जेंडर स्टडीज़ का, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान. क्रिमिनोलॉजी के लिए और लिटरली मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा बुक्स पे मत जाओ, आप कंटेम्प्रेरी सोर्सेज पे जाओ जिस जहाँ से आप प्रिपेयर कर सको. एंड इट रियली डिपेंड्स. लोग ये भी पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाने. सी, नोट्स इज़ डिफरेंट फॉर एवरीबडी. सम पीपल आर ओनली सेटिस्फाइड विद शॉर्ट नोट्स. कुछ लोग लॉन्ग नोट्स बनाते हैं, फिर उनके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं. आई वॉज समवन जिसको लॉन्ग नोट्स पसंद थे, जो कि लास्ट मोमेंट पे भी लॉन्ग नोट्स पढ़ लेती थी. आई एम नॉट द पर्सन जो कि इतने बुक की आप कह लो कि लेंथ से, या पेजेस की नंबर ऑफ पेजेस से, या व्हाट्सोएवर, आई हैव नेवर बीन ओवरवेल्म्ड बाय दैट. सो मेरे लिए लास्ट मोमेंट पे इतने मोटे नोट्स पढ़ना भी चल जाता था, और मैंने इसी तरह तैयारी की थी. सो इट रियली डिपेंड्स. इसलिए मेरे जो नोट्स वो बहुत एक्सटेंसिव थे. आई विल शेयर माई नोट्स विद यू गाइज, और वो क्लियर फाइल के अंदर इतने मेरे नोट्स हैं, और मैं लास्ट डेज तक वही पढ़ती थी, और आई वॉजेंट ओवरवेल्म्ड. बहुत आसानी से मैं स्किम थ्रू करती थी. बट इफ़ यू थिंक यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो इतने ज़्यादा नोट्स पढ़ सकते हैं, तो यू शुड नॉट मेक सच बिग नोट्स. फिर आपको शॉर्ट नोट्स की तरफ ही जाना चाहिए. And you should not waste too much time making notes if you ask me. लोग बहुत ज़्यादा टाइम नोट्स बनाने में लगा देते हैं. 6 महीने नोट्स ही बन रहे. वाई? स्टॉप प्रिपेयरिंग नोट्स. स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट योर रिटन प्रैक्टिस, स्टार्ट टेकिंग मॉक्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप अपनी एवेल्युएशन नहीं करवाते आपको पता नहीं चलता. ठीक है. ओके, सो मुझे किसी ने पूछा हाउ टू प्रिपेयर मुस्लिम पोलिटिकल फिलोसफर्स, एंड देव आस्क्ड मी टू शेयर माई अटेम्प्टेड फिलोसफर क्वेश्चंस. दैट आई हैव टू डू. दैट आई डू ऑन इंस्टाग्राम. आई ट्राई टू शेयर दैट ऑन यूट्यूब एज वेल. ये मैंने बुक्स से किए थे, क्योंकि पोलिटिकल साइंस के पास के रिलेटेड मेरे पास बहुत ज़्यादा बुक्स थी. कुछ फिलोसफर्स के लिए मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी, बट अदरवाइज़ वो मैंने खुद ही किया था. उसके अलावा ओके, सो समवन हैज़ आस्क्ड कि आई हैव क्वेश्चन मॉक्स या टेस्ट सेशंस एक बार सिलेबस कंप्लीट करके दें या साथ साथ. ओके, जो मॉक्स है ना, आपको जब मौका मिले वो दें. मॉक्स इज़ लाइक
कोई आपके इर्द गिर्द कुछ सोना बिक रहा है और आपको जहाँ मौका मिला आपने उसको बस अपनी तरफ खींचना है। देखिए, अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ आपके इर्द गिर्द मॉक्स हो रहे हैं, प्लीज़ डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। आई कैन नॉट टेल यू, अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट, एक ऐसे इकोसिस्टम में हैं जहाँ आपके इर्द गिर्द हर वक्त मॉक्स हो रहे हैं, तो यू आर अ लकी पर्सन। यू शुड नॉट मिस एनी मॉक्स। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, हमने अभी पूरी प्रेपरेशन नहीं की, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ टेकिंग द मॉक्स। बट ट्रस्ट मी, दैट इज़ द रियल पॉइंट व्हेन यू हैव टू टेक द मॉक्स। क्योंकि आपको तभी आप अपनी वैल्यूएशन कर सकते हो। एंड पे तो सबने मॉक्स देना है, लेकिन उस टाइम पे हर कोई एक ही लेवल पे खड़ा होगा। आप शुरू शुरू में मॉक्स दोगे, चाहे आपका अच्छा हो या ना हो, आपको आइडिया तो होगा कि मैंने एग्ज़ाम का प्रेशर कैसे हैंडल करना है, मैंने रिटर्न अपनी प्रेजेंटेशन कैसे सही करनी है। सो प्लीज़, अगर आपके इर्द गिर्द मॉक्स हो रहे हैं, आप जानते हैं कि अगर आपके कोई टीचर्स मॉक्स ले रहे हैं, कोई अकेडमीज़ में हो रहे हैं व्हाट्सोएवर, तो प्लीज़ टेक द मॉक्स। दे आर सच अकेडमीज़ जो हर महीने मॉक्स ले रही होती हैं। सो प्लीज़ टेक द मॉक्स। इस चीज़ का मत वेट करें। अगर आपने ऑप्शनल के मॉक्स नहीं देने, ना दें, कोई मसला नहीं है। कंपल्सरी के तो मॉक्स दे देना। करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स में क्या आपको प्रिपेयर करना होता है? करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर्स इज़ लिटरली कंटेम्प्रेरी इशू। उसमें क्या प्रिपेयर करना होता है? कुछ भी नहीं। सो प्लीज़, ये सिर्फ एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। डोंट मेक दीज एक्सक्यूज़ेज़। और आपको लिटरली मॉक्स देने चाहिए। एंड पे तो आपने देने ही हैं, एंड पे तो सब ने देने हैं। आपको अपना टारगेट रखना चाहिए कि बाय नवंबर मेरी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए, और बाय उसके बाद मुझे सिर्फ मॉक्स पे मॉक्स पे मॉक्स देने हैं। somebody also asked me about MPT. ओके, मैंने इसके अलावा किसने पूछा, डिड आई अटेंड एनी टॉपिक वाइज टेस्ट सेशन? यस। और मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट सेशन बताऊँ कब दिए थे? मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट सेशन दिए थे फरवरी, मार्च, अप्रैल में। उसके बाद मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट सेशन नहीं दिए थे, क्योंकि वो भी मैं बहुत रेगुलरली नहीं देती थी। करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स और इंग्लिश के रेगुलरली देती थी, बाकी रेगुलरली नहीं देती थी। सिर्फ कंपल्सरीज के होते थे इनिशियली। सो बट आफ्टर जुलाई, जून जुलाई से ऑनवर्ड्स मैं कंपल्सरीज के मैं हर महीने देती थी मॉक्स। वो मैं कोई भी मिस नहीं करती थी, चाहे मेरी तैयारी थी, चाहे मेरी तैयारी नहीं थी, चाहे जो भी था, वो मैं बिल्कुल मिस नहीं करती थी। और इसकी वजह से कंपल्सरीज़ को लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। कंपल्सरीज़ में मैं इतनी घबराई हुई नहीं थी। कंपल्सरीज़ में आई वाज लाइक मैं कर लूँगी। और कंपल्सरीज़ में मेरा जो एटीट्यूड था वो बहुत रिलैक्स था, क्योंकि आई न्यू कि कंपल्सरी का प्रेशर मैं ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो प्रेशर लिया हुआ था बाय टेकिंग मॉक्स। इतने प्रेशर में मैं अपने ऑप्शनल भी तैयार कर रही होती थी, कंपल्सरी भी दे रही होती थी। लेकिन इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि दैट हेल्प मी गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। उससे मुझे आइडिया हो गया कि मेरी तैयारी कैसे है या किस तरह से मैं कर सकती हूँ। उसके अलावा आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर मोर क्वेश्चंस। अगर अच्छा, पीपल आस्क मी कि मैंने कौन सा ऐसे का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। सो आई अटेम्प्टेड द टॉपिक पोलिटिकल मॉक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज़ द वर्स्ट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी. And I also shared my outline. So my outline is not the final outline जो मैं पेपर में लिख के आई थी. Of course, it was my outline in the paper was more organized, and it was well written. जो मैंने घर आके अपने एक सर को आई फॉरवर्डेड हिम माई आउटलाइन, वो उसकी स्क्रीनशॉट्स लगा के अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे शेयर किए. सो दैट इज़ जस्ट अ रफ एस्टिमेट ऑफ हाउ आई रिटन. सो आपके जो ऐसे के मिनिमम होनी चाहिए हेडिंग्स, वो 15 होनी चाहिए. 15 से जितना मर्ज़ी आप एक्सटेंड कर लो, 15 इज़ मिनिमम. लेकिन जब आप 15 लिख रहे हो तो फिर आपके एक पैराग्राफ में एटलीस्ट 110 से 120 वर्ड्स होने चाहिए. अगर आप 20 प्लस या 15 प्लस लिख रहे हो पैराग्राफ्स, तो फिर आपके ईच ऐसे में फिर आपके ईच पैराग्राफ में अगर 110 या 100 वर्ड्स भी हैं तो इट्स ओके, राइट. सो द मेन catch here is कि your essay should at least touch 1800 से 2000 words. Okay, that's the main thing that you require to do. 3000 words nobody can write. Okay, that's impossible. So what I did in my essay was कि मैंने 23 headings लिखी थी total, और each paragraph में मेरे 110 plus words होंगे. and I'm confident about it, क्योंकि initially जब मैं अपना essay लिखती थी तो मेरी जो headings थी वो मुश्किल से 11 से 12 थी, और मेरे हर पैराग्राफ में वर्ड्स जो थे
that were to be exact 35 से 50. So once one of my sir asked me कि आपके पैराग्राफ में कितने वर्ड्स होंगे, मैंने कहा 90 होंगे. So he counted those in front of me and they were literally 35. And he was like, इस तरह तो ऐसे पास नहीं होगा, 35 वर्ड्स का कोई पैराग्राफ नहीं होता. एंड आई जस्ट रेड समवेयर वेयर समवन सेड कि उनके शायद किसी सर ने उनको कहा कि एक पैराग्राफ में 180 वर्ड्स होने चाहिए. दैट मीन्स कि आपका एक पैराग्राफ पूरा पेज कवर कर रहा है. दैट्स नॉट राइट. आपका इंट्रोडक्शन लंबा होना चाहिए जो कि अगले पेज पे भी थोड़ा चला जाए तो दैट वर्क्स. और मुझे याद है मेरे इंट्रोडक्शन के वर्ड्स 180 से 220 तक चले जाते थे. उसके अलावा मेरे बाकी जो पैराग्राफ था उनकी वर्डिंग मिनिमम 90 होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 110 होती थी. एंड आई थिंक दैट इज़ ओके क्योंकि आप इतना ही लिख सकते हो. बजाय ये कि आप डाइवर्ज करो और उल्टी सीधी बातें करो और इरेलीवेंट बातें करो, अच्छा है कि आपका ऐसे कंसाइज हो और शॉर्ट हो, राइट. सो इफ़ यू हैव टू चॉइसेस, आइदर टू राइट irrelevant stuff and diverging stuff or to write points that are कंसाइज एंड रेलिवेंट, तो मैं आपको कहूँगी आप कंसाइज और रेलिवेंट रखो, फिर चाहे शॉर्ट हो, नो मैटर, इट दैट डजंट रियली मैटर. मतलब आई डोंट थिंक कि अगर किसी का कंटेंट सही हो, इंग्लिश सही हो, ग्रामर ठीक हो, टू द पॉइंट हो, और अगर लेंथ शॉर्ट हो तो उस पर कोई फेल होता है. फेल होने का क्राइटेरिया इज़ नॉट लेंथ और नॉट नंबर ऑफ पेजेस, राइट. आई होप यू गेट माई पॉइंट. और अगर आपको ऑप्शनल से कुछ लोगों ने ऑप्शनल्स के, येस वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शनल से मुझे याद है. सो देयर वाज समवन हु आस्क्ड मी कि दे आर वेरी स्केयर्ड आफ्टर लुकिंग एट जीपीपी एंड एंथ्रोपोलॉजी. सो इन माई लास्ट वीडियो आई सेट कि अगर मैं 2026 में एग्ज़ाम दे रही होती तो मैं एंथ्रोपोलॉजी और जीपीपी को ना चेंज कर रही होती. लेकिन आई जस्ट थॉट टू माई सेल्फ दैट इज़ इट सो. आई नो कि जब आप किसी सब्जेक्ट में इतना दिलो जान लगाते हो तो आप उसको नहीं चेंज करना चाहते. यू आर लाइक, I'm confident I did all of it, but still I did not get marks. Maybe it wasn't my time, maybe it wasn't my luck. But from a very practical point of view, मैं आपको suggest करूँगी कि एंथ्रोपोलॉजी और जीपीपी को इस साल स्विच कर दें. ओके, those who are opting for anthropology, do not keep anthropology because anthropology जिसने भी लिखी है, including me and many of my friends, in fact friends who had brighter minds than I have, you know, friends who were much more smarter than I am, they also could not pass anthropology. और मुझे अपने लिए तो बुरा लगता है, लेकिन मुझे अपने उन फ्रेंड्स के लिए भी उतना ही बुरा लगता है क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी, वो मुझसे ज़्यादा क्रिएटिव थी, उनका भी एंथ्रोपोलॉजी पास नहीं हुआ. सो मैं नहीं चाहती समवन एल्स गोज थ्रू द सेम. सो आप एंथ्रोपोलॉजी की जगह आइदर कीप अ लैंग्वेज और कीप a history subject, right? एंड जीपीपी की जगह यू कैन कीप पब्लिक एड बिकॉज इट्स वेरी आयरॉनिक कि जो पब्लिक एड के साथ हमेशा से होता रहा है वो इस साल जीपीपी के साथ हो गया है. एंड पब्लिक एड इज़ सरप्राइजिंगली अ वेरी गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट दिस ईयर. So that is a good thing because a few people shared their DMCs with me and I was really surprised to see that public ad turned out to be a really decent scoring subject this year. So yeah, this was it. I hope that I've tried to address all your questions. और मुझसे एक और सवाल पूछा गया था if this was my first attempt or not. So yes, this was my first attempt. And yes, don't be scared about कि अब हमने इतनी तैयारी कर ली है इस सब्जेक्ट की और अब हम इसको बदलें या नहीं, या वी आर वेरी स्केयर्ड व्हाट टू डू. देखिए, डोंट बी स्केयर्ड. वो जो आपने पढ़ लिया है ना, वो आपका किसी ना किसी तरह किसी और सब्जेक्ट में, किसी और आंसर में, किसी और पॉइंट में रिफ्लेक्ट होगा. सो इट इज़ बेटर कि आप आपके लाइक सही टाइम पे रिजल्ट आ गया है, लाइक यू स्टिल हैव टाइम कि आप अपने सब्जेक्ट स्विच कर लें. सो आई वुड सजेस्ट कि यू जस्ट स्विच योर सब्जेक्ट. जीपीपी इज़ वेरी मच सिमिलर टू पब्लिक एड. इनफैक्ट जीपीपी में आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए टू मेक योर पॉइंट. पब्लिक एड इज स्टिल वेरी थियोरेटिकल. You can go with public ad. And at the same time, when we talk about anthropology, either go with sociology. But again, sociology is very general. You need to really write something different or creative to make your paper stand out, right? So yeah, this is the video for today. अगर आप लोगों के और कोई questions हैं तो please let me know. So yes, and by the end of this week I will let you know about my essay mentorship program and my guidance sessions
on political science, criminology and gender studies. So for the time being, just stay tuned. और अगर आपकी जो भी queries हों, please drop them. I'll try to upload this video on Instagram as well as on YouTube. Thank you.